في قلبي. قرآن پاک کی بے حرمتی کا برا انجام دیکھیں. یہ ویڈیو کے اندر ہم یہی ایکسپیرینس کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دا هندو انجلی دا دین اسلام په باره کې ډېره ښه نظریه ساتي. د قرآن شریف بې حرمتي په باره کې دا ویډیو ده. تاسو راسئ موږ تاسو ټول په ګډو سره وګورو او تر کتلو له مخه دا زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او د ګنټۍ بټن سره پریس کړئ. راسئ چې موږ تاسو دا ویډیو وګورو. قرآن پاک کی بے حرمتی کا برا انجام دیکھیں. یہ ویڈیو کے اندر ہم یہی ایکسپیرینس کرنے والے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو اللہ کی کتاب 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب آخری پیغمبر اللہ کے انہوں نے ستھاپت کر دی تھی، اس پہ آج تک لوگ غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. اور قصے تو یہ بھی سامنے آتے ہیں کہ کچھ ایک ایسے سدسیہ بھی رہے ہیں جنہوں نے ٹرائی کرا کہ اوکے لیٹ می فائنڈ اے فالٹ ان قرآن شریف، اور وہ ایمان لے کر کے آ گئے. کیونکہ قرآن شریف میں غلطی نکالنے کے لیے آپ کو پڑھنی پڑے گی اللہ کی کتاب، اور ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کا ایمان جاگ جائے. ہی ہائے ہلو نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے. خوش تو نہیں ہوں آج کے اس ویڈیو پہ ریاکشن ہونے والا ہے، کیونکہ یار قرآن شریف کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا ہے نا، تنقید کرتا ہے، تو مجھے دل سے اچھا نہیں لگتا. کیونکہ یہ کتاب ہمیں بہت سے ایسے جینے کے طور طریقے سکھاتی ہے جس پہ اگر کوئی انسان عمل کر لے تو وہ پیار، شانتی، امن، چین کے علاوہ کچھ اور اس دنیا کے اندر ریلیز کر ہی نہیں سکتا. یہ میرا ماننا ہے. پر اس دنیا کے اندر بہت سارے بلائنڈ فالوورز بھی ہوتے ہیں جنہیں اندھ بھکتوں کے نام سے انڈیا کے اندر تو جانا جاتا ہے. اب قرآن شریف جیسی پاک و پاون کتاب کے لیے اگر کسی نے الٹا سیدھا بولا ہوگا تو اللہ معاف کرے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ایکچولی اس گنہگار کو دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ پکڑ ایسی ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. یہ واقعہ کہاں اور کب پیش آیا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے. لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں. جزاک اللہ. دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 9. یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے. لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں. اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا.
ऐसे वाकयात वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो वाकया बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाकया है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया और कई सालों से उनका नामो निशान तलाश करने के बावजूद दुनिया की ताकतें उन बदबख्तों का सुराग लगाने में नाकाम हैं। चलिए चलते हैं उस वाक़े की जानिब और आपको बताते हैं कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाह कुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है, और ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है। कहते हैं कि साहिल समुंदर पर एक फौजी छावनी थी। उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे, और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरियां खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ और गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का निशाने इबरत बना दिया गया ताकि कोई इस बात की जुर्रत ना करे कि वो कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के बारे में सोचे। ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है। और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था, लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें। खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायते सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 29-14। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं,
जो कुरान उनको याद है, जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायते सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायते सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा, जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी, क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी, तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बायसे बरकत है, इसे छोड़ना बायसे हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारवायते सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है और हम इसकी तलावत कितनी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज मैं कह देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वीडियो। कुरान शरीफ की महज कुछ आयतें मात्र पढ़कर के ये सनातनी लड़की भी इतना समझ गई है कि आप अल्लाह के बेहद करीब हो जाते हैं अगर आप हाफिज कुरान हैं तो। क्योंकि यार वो क्रिएटर जिसने हमें क्रिएट कर दिया, हमसे कुछ लिया भी नहीं है बदले में, उसके हम बहुत प्रिय हैं। पता है वो बहुत बहुत प्यार करता है हमसे। मुझे माफ़ करिएगा, मेरी आंखों में से फिलहाल आंसू आने लगे, क्योंकि जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ ना, स्पेशली वो वक्त जब आप अकेले बैठे हों और अल्लाह के नाम लेकर के ना आपके आंसू निकल रहे हो, उस वक्त आपका अल्लाह आपसे बहुत राज़ी हो जाता है कि ये है हम मेरा नेक बंदा जो मुझे याद करके रो रहा है। इतना ज़्यादा प्यार वो मुझसे करता है। और नमाजी लोगों के तो कहने क्या, 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें से स्पेशली सुबह और शाम की जो ज़ोहर और असर नमाज होती है, उस वक्त पे किसी को सोना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बहुत साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे छुपा हुआ है। वो अगर आप नमाजी हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं भी हैं तो इट्स ऑल राइट। आई विश के फ्यूचर में हो जाए, हमको भी अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता फरमाए। मैंने सेपरेटली इन नमाज के ऊपर वीडियो बनाए थे, आप सर्च करिएगा इंटरनेट पे लिख करके, या फिर मैं आई बटन पे लगा दूंगी, इट विल बी मोर सिंपलर। और आप देखिए अल्लाह का अजाब कैसा नाजिल हुआ कि आज तक उसकी खोज नहीं हो पा रही है इंसानों से कि यार ये इधर नेचुरल कैलामिटी, ये डिज़ास्टर आ कैसे गया, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं है अभी तक। आप इतनी बेहयाई में जब एंटर कर जाते हैं ना कि एल्कोहलिज्म चल रहा है, वहाँ पे जिनाकारी का माहौल चल रहा है, लड़कियों को अश्लील तरीके से देखा जा रहा है, बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है ये। वहाँ पर आप कुरान शरीफ की इतनी पावन मुकद्दस किताब को मंगवा रहे हैं सामने वाले मुसलमान से, उसे रीड करवा रहे हैं। कितना उस ईमान वाले इंसान का दिल दुखा होगा उस समय, एक ऐसी बेहयाई में पहुंच गया हूँ मैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस बेचारे के बहुत बंधन हो उस वक्त, कि अगर वो मना कर देता अपने से बड़े अफसर के हुक्म को, तो उसको ऐसा कुछ झेलना पड़ता जो हमारी सोच के
بے حد پرے ہے. ظالم و جاہل لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں, پر اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے, اور آپ اور میں ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی, اور یہی امید کرتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کوئی ایسی قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہ کرے, اور کرے گا بھی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسا ٹریٹمنٹ دینا ہے, وہ اپنے حساب سے ڈیل کر لیں گے. وہ بہت بڑے کریٹر ہیں, ہم تو کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے, اتنے سے بھی نہیں ہے, تھوک کے کڑ کے برابر بھی نہیں. چلیے اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا. ہم ایسی بہترین ویڈیوز کے ساتھ روزانہ ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.